کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب حافظ عبد الرحمن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں آزادی کے سلسلے میں انہوں نے جانا ہے، تو حاضرین محفل، آج ہم جس ملک آزاد ملک کے اندر آزاد شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا خواب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب پر عمل کرتے ہوئے یہ ملک حاصل کیا، اور آج ہم یہاں پر اپنی مذہبی آزادی کے تحت، شخصی آزادی کے تحت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور یہ وہ فیصلہ جو ہمارے بڑوں نے مسلمان قوم کے لیے کیا تھا، آج ہم اس فیصلے کو دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جہاں باقی ہمارے مسلمان دوست وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم و بربریت کا سامنا کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ ان کی زندگی کو کس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ سارے حالات دیکھتے ہیں تو ہم اپنے ان بڑوں کا، جنہوں نے اس ملک کے لیے کوششیں کی، جنہوں نے اس ملک کے لیے جانیں قربان کی، ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ہم ان کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک علیحدہ خطہ دیا جہاں پہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی اور شخصی آزادی کے تحت اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور کوئی بھی شخص ہماری مذہبی آزادی پہ انگلی اٹھانے والا نہیں ہے۔ وہاں سے جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو پورے کے خاندان قتل کر دیے گئے، ہماری ماں بہنیں بڑوں کو شہید کر دیا گیا۔ یقیناً اس حال میں بھی ایسے دوست موجود ہوں گے جن کے خاندان کے افراد کو اس ہجرت کے دوران شہید کر دیا گیا۔ میں خود میری تقریباً چار پھوپھو اور میرے دادا ابو، میرے چچا، ہماری فیملی کا خون بھی شامل ہے۔ اس ہجرت کے دوران ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یقیناً یہ ایک خون سے بھری ہوئی داستان تھی، قربانیوں سے بھری ہوئی داستان تھی، جس کے بعد ہمیں یہ ملک عزیز حاصل ہوا تھا۔ ابھی ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم اس ملک عزیز کا خیال رکھیں اور اس کو کسی بھی غلط ایجنڈے کے تحت اس کے اوپر آنچ نہ آنے دیں۔ بدقسمتی سے آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ اس طرح کی معاملات کے ذریعے سے نوجوان نسل کے اندر یہ چیز ڈالی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان بننے کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا۔ تو ہم سب نے اس چیز کو روکنا ہے کہ پاکستان بننے کا فیصلہ غلط نہیں تھا، پاکستان کو چلانا ہم نے ہے، پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے حوالے سے خیال ہم نے رکھنا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر اب ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم اگر یہ چیز ڈالنے دیں گے، کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ یہ چیز ڈال دیں کہ پاکستان کا بنانے کا فیصلہ غلط تھا، تو یقیناً پھر آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارے لیے انتہائی خوفناک ہو جائے گا۔ تو پاکستان ہماری جان ہے، ہماری پہچان پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہم سب پاکستان ہیں تو ہم ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو یقیناً ہمیں بھی کوئی سننے والا، کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب ملک عمر طارق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے یوم آزادی کے حوالے سے اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 14 اگست یوم آزادی کے طور پر منا رہے ہیں۔ میرا تعلق اس وقت سے ہے، میں اس وقت پیدا ہوا جب پاکستان بن چکا تھا، اور جب میں سن شعور کو پہنچا تو پاکستان کٹ چکا تھا۔ گویا کہ یہ ملک ہم نے بڑی تگ و دو اور بزرگوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، مگر ہم اس آزادی کے مقصد کو آج بھی بھول چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آزاد ضرور ہیں، مگر ہم بنیادی طور پر آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے حقوق آج بھی سلب ہوتے ہیں۔
लेकिन फिर भी ये वतन हमें अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। ये वतन जिसको हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, आज हम उस वतन के खिलाफ साजिशों में मसरूफ अमल नजर आते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान को तोड़ने की एक बार फिर साजिशें की जा रही हैं, लेकिन जब तक ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर प्रेस क्लब सैयद फ़र्रुख रज़ा और उनके हमरा सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान राना शकील साहब और प्रेस क्लब कबीरवाला के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और कबीना, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेस क्लब की तकरीब इस बात का भी सबूत है कि आप और हमारे और समाज के दीगर लोगों के दिलों में पाकिस्तान की हसूल के लिए दी गई लाज़वाल कुर्बानियों का एहसास और उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब मौजूद हैं। हमारी मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक मखसूस एजेंडे के तहत एक कैंपेन चलाई जा रही है कि असल आज़ादी क्या है, आप थोड़ा सा मुआवजा करें इस बात पे कि आप अपने मोबाइल से, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से लाताल्लुक़ होके आप सिर्फ एक दिन मुझे एक बंद कमरे में रह के दिखा दें। अगर आप एक दिन की उस बंद कमरे की उस तकलीफ़ को अगर आप बर्दाश्त करें या बयान करने लग जाएं तो आपको यकीनन उस वक़्त एहसास होगा कि आज़ादी एक क्या है और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जमहूरी सिस्टम, मौजूदा जुडिशरी का निज़ाम और मौजूदा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम और जो हमारे सियासी निज़ाम है, इसको बेहतर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफार्म पर उस पर तनकीद करनी चाहिए। हम सब मिलकर पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, आम आदमी की आज़ादी के लिए, मुआशरती आज़ादी के लिए और दीगर तमाम आज़ादियों के लिए हम मिलकर जंग लड़ेंगे। इस मुल्क को उसी तरह, उसी प्लेटफार्म और उसी आइडिया की तरफ लेके जाएंगे जो क़याद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ सदर प्रेस क्लब कबीरवाला का और दीगर मेहमान ग्रामी का जो आज हमारी कॉल पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इनकी मोहब्बतें हमारे साथ रहेंगी और हम इंशाल्लाह आगे बढ़ के इस प्रेस क्लब के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आखिर में मैं सदर साहब से सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि जहाँ पे वो दुआ करेंगे मुल्क की सलामती के लिए, वहीं पे ज़िला खानेवाल की सरजमीन के एक सितारे जो कि कल हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके हवाले से जो है वो ज़रूर उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। चीज़ को, हर उस कदम को रोकना होगा जिससे कभी भी हमारी आज़ादी पे कदगन आती हो। मैं किताबात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुल्तमस हूँ जनाब साबिक़ सदर प्रेस क्लब कबीरवाला जनाब सरदार सज्जाद अहमद खान सियाल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। और खान साहब माजरत कर रहे हैं, उनके गले की खराब है। तो मैं मुल्तमस हूँ साबिक़ सदर प्रेस क्लब कबीरवाला जनाब मलक खालिद शफीक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के दिन के हवाले से इज़हार ख्याल करें। जनाब मलक खालिद शफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदो सताइश उस ज़ात के लिए जिसने इस कारखाने आलम को वजूद बख्शा और दुरूद व सलाम उसके आखिरी पैगम्बर पर जिन्होंने दुनिया में हक़ का बोलबाला किया। मैं सबसे पहले तो प्रेस क्लब के अहदेदारों को, सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को मुबारकबाद पेश। 65 लाख अफराद और 55 लाख अफराद पाकिस्तान से इंडिया गए थे। ये इस तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी और इसमें जो शहीद हुए हमारे मुसलमान, उनकी तादाद 15 लाख थी, जबकि दीगर हिंदू जो हलाक मारे गए उनकी तादाद 5 लाख थी। यानी इस तरह 20 लाख अफराद हलाक हुए इस
सारी इस जद्दोजहद के आज़ादी में हमारी जो हमें मिली है, आज़ादी की कदर पूछना हो तो आज वहाँ जो मुसलमान हैं आज इंडिया के अंदर, उनसे पूछें वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें मतलब है कि किस तरह जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह उन पर ज़मीन तंग कर दी गई है। हम तो खुश नसीब हैं कि हमें जनाब ले यहाँ पर हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। यौम आज़ादी आज का दिन दरअसल यौम तजदीद का दिन भी है। हमने अहद करना है कि हमने इसकी इज्जत के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी हिफाजत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर देना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको दुश्मनों से महफूज रखे। हमें ज़्यादा ख़तरा पैर जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनसे नहीं है, बल्कि हमें ज़्यादा ख़तरा जो यहाँ रहने वाले हैं, जो साजिशें करने वाले हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़, हमें उनसे ज़्यादा ख़तरा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को क्या क़यामत तक सलामत रखे, महफूज रखे। एक मरतबा फिर मैं सदर प्लस तरफ का, अंजुमन ताजरान के सदर का और तमाम हज़रात का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। शुक्रिया। मैं किताब के लिए हज़रत मौलाना उमर फ़ारूक असगर साहब से 2 मिनट के लिए बड़े इज्तिमात में खिताब करता है, तहफ़्फ़ुज़ में खिताब करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी जरस तो कभी काफ़िले बदलते हैं, ये रास्ते यूं ही अज़ल से चलते हैं। चराग़ बज़्म अगर बुझ गया तो क्या गम, एक चराग से लाखों चराग जलते हैं। मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी हर तरह हिफाजत फरमाए। बस हमारी बदकिस्मती यही है कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया ये मुल्क इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गया। अमन व अमान, बदअमनी, महंगाई, परेशानी, तकालीफ, मसाइब, फ़िरका वारियत, इसने हमें दीमक की तरह चाट के रख दिया है। जबकि इस्लाम तो इस बात का दर्स देता है कि आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा है कि एक शख्स आया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक मरतबा मुझे छड़ी मारी थी और मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। जितने वहां सहाबाए कराम बैठे हुए थे, सबकी आंखों से खून उतरने लगा और चेहरे सुर्ख हो गए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। फरमाने लगे कि ऐसा हो तो नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाया हो और मेरे हाथों से किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो, किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। अगर तुम कहते हो तो आ जाओ, मेरा जिस्म हाजिर है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शख्स करीब हुआ और कहने लगा कि जिस वक्त आपने मुझे छड़ी मारी थी, मेरे बदन पर कुर्ता भी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया, वो उसके हाथ में छड़ी थी, उसने वहीं फेंकी और मोहर नबूवत को जाकर बोसे दिए और बोसे देते हुए रो पड़ा और रोते हुए ये कहा कि मुझसे गुनाह सरज़द हो गए थे, मेरे पास बख्शिश के लिए कोई और जरिया नहीं था, तो मैंने ये रास्ता अपनाया ताकि जहन्नम की आग मुझ पर हराम हो जाए। तो आज हमें भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को माफ़ करने के। साहब ने, मैं उनको और उनके साथ आने वाले मेहमानों को खुशामदीद करता हूँ। और साथ ही मैं मुद्दरस हूँ जनाब रियाज शाहिद माधुरिया साहब से कि आप कुछ तशरीफ लाएँ और आपके दिन के हवाले से
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ताख़ीर पे आने की माज़रत। वर्दी प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कबीरवाला जनाब सैयद फरहत रज़ा तिरमिज़ी, वर्दी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कबीरवाला जनाब मोहतरम राव नासिर यादव साहब और काबिल एहतराम सदर अंजुमन ताजरान जनाब राना शबीर अहमद साहब, मुअज़्ज़िज़ जुमला साहिबान अहलो कलम व हुर्मत और सिविल सोसाइटी के तमाम नुमाइंदा अफराद, मैं नहीं जानता कि मुझसे पहले कितने लोगों ने कितनी गुफ्तगू की होगी। हो सकता है, गुमान यही है कि तवालत का शिकार ये तकरीब यकीनन हो चुकी होगी कि जहां मुझ जैसे नालायक इतनी ताख़ीर से आ सकते हैं, तो यहाँ पर आने वाले मुकर्रीन भी अपना हक जताते हुए लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। लिहाजा इंतहाई इख्तिसार के साथ तमाम मुहिबान अहले वतन को प्रेस क्लब की वसादत से पाकिस्तान का 76वां 76 यौम आज़ादी मुबारक हो। खुदा का शुक्र है कि हम आज़ाद हैं। आज़ादी के मफ़हूम को महंगाई के तनाजुर में, करप्शन के तनाजुर में, दीगर समाजी बुराइयों के तनाजुर में जोड़ना इसलिए मुनासिब नहीं कि वो हमारे लिए हालात का जबर हैं, वो हमारे लिए एक रियासती जबर को बर्दाश्त करने का एक सिलसिला है। उनके अलग से मफाहीम हैं, उनके अलग से तनाजुर हैं, आज़ादी का एक अलग से मफहूम होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं, अपने मामलात में आज़ाद हैं, अपने जज्बात के इजहार में आज़ाद हैं, अपने मजहबी अकायद के इजहार में आज़ाद हैं, अपने मुख्तलिफ नज़रियात रखने के बावजूद अपने मसालिक के मुक़द्दसात के एहतराम में हम आज़ाद हैं। और शुक्र है खुदा का कि हम आज़ाद हैं। खुदा इस पाकिस्तान को सलामत रखे, खुदा हमारी इस आज़ादी को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और प्रेस क्लब कबीरवाला, आपकी अज़मत को सलाम कि आपने यौम आज़ादी की तकरीब का अहतमाम किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रियाज शाहिद खान साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और मुख्तसर अल्फाज में बहुत अच्छी बात कर गए। और हाज़रीन महफिल में तकरीब को गैर ज़रूरी तवातुर से बचाने के लिए खिताबात का सिलसिला जो है वो चला रहा हूँ ताकि दोस्तों की जो बात सिर्फ और सिर्फ मकसद आपसे बात करने का ही कि अब आगे हमने क्या करना, पीछे छोड़ के अब आगे हमने क्या करना। आगे हमने एक हजरत तफरीक किसी और भी शोबा से वाबस्ता, सिर्फ अब जब हम एक हजूम से कौम की तरफ जाएंगे, यकीनन पाकिस्तान हम ना सही हमारे आने वाली नस्लें दीगर बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उससे बहुत आगे जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कलमा के नाम पर बना है। तो और हमें उम्मीद है उनके जहन से जो अभी फरमा रहे थे भाई सज्जाद शाह साहब कि उसको इस चीज़ से निकालना है कि जी कि पाकिस्तान पछतावा बन गया। ऐसी कोई सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुरखरू हैं, हम भी सुरखरू हैं कि पाकिस्तान में जो भी है सबसे अहम चीज़ होती है मजहबी आज़ादी, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। रोहिंग्या में आपने कुछ साल पहले देखा है, हिंदुस्तान में देख रहे हैं और दीगर काफ़ी ममालिक में देख रहे हैं, मुसलमानों के हकूक़ तलब किए जाते हैं। सबसे बड़ी कामयाबी हमारी यही है कि हम एक बहैसियत मुसलमान अपना पूरे इज्जत और वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मिन्नत है, दरख्वास्त है, एक हजूम से निकल कर एक कौम की तरफ बढ़े और इंशाल्लाह मरकज़ी अंजुमन ताजरान इसमें अनकरीब एक अपना भरपूर किरदार अदा करेगी एक कौम की तरफ बढ़ने के लिए। जब हम एक कौम की तरफ बढ़ेंगे हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो चुके होंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई फरूक रज़ा साहब, राव नासिर यामी साहब, पूरी प्रेस क्लब की काबीना माशाल्लाह पूरी रौनक देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों को तैसे शुक्रगुजार हूँ। बस एक कौम की तरफ बढ़े, आपकी बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब राना शकील अहमद साहब, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान कबीरवाला, जनाब मौलाना उमर फारूक असगर साहब, महकमे जामिया अस्ताद उलूम कबीरवाला, जनाब रियाज शाहिद खान पुनिया एडवोकेट, हमारे बार एसोसिएशन के मुअज़्ज़िज़ मेंबर दोस्त, जनाब महमूद सदीकी साहब, सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, मुख्तार सुखेरा साहब और दीगर इस हॉल में मौजूद मेरे तमाम साथी मेम्बरान प्रेस क्लब के तौर पर मौजूद हैं और हमारे अतीक भाई और दीगर जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान के दोस्त तशरीफ़ लाए। आप सबको आज की
इस तकरीब में प्रेस क्लब की जानिब से खुश आमदीद कहते हुए यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 14 अगस्त ये वो दिन है कि जिस दिन आज से 76 बरस पहले हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने एक नए वतन की तरफ हिजरत की, एक नया देश, एक नया वतन कायम हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बसीरत, उनके साथियों की जदोजहद और उस वक्त जो लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़कर एक नई सरजमीन की तरफ हिजरत की, वो तमाम लोग आज हमारी तरफ से ख़ाज तहसीन के मुस्तहिक हैं और हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी कोशिशों को, उनकी काविशों को सराहते हैं। 76 बरस पाकिस्तान की ज़िंदगी में कमोबेश 50 बरस से ज़्यादा वक्त हम लोग जहाँ जो मौजूद हैं, 50-55 की राउंड अबाउट एज के अंदर लोग मौजूद हैं, हम अपनी आंखों से इस देश को देखते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये देश, ये वतन किसी ने एक प्लेट में रखकर मुसलमानों ने पाकिस्तान को पेश नहीं किया। इसकी एक तवील तारीख़ है, जदोजहद है, और वो सफ़र कोई मुख्तसर सा नहीं है। क़याम पाकिस्तान से पहले आल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम से लेकर करार पाकिस्तान की मंजूरी तक, और फिर अगले 6-7 बरस की वो जो जदोजहद थी कायद आज़म की, वो हमारे सामने तारीख़ के सफ़हात पर मौजूद है। ये अलग बात कि आज हमारे बच्चे या हम तारीख़ पाकिस्तान के उस गोशे को उस तरह से न पढ़ते हैं और न कभी सोचते हैं कि वो जो एक तवील सफ़र था 1947 तक आने का, उस दौरान हिंदुस्तान के अंदर जब ब्रिटिश राज था और एक तरफ हिंदू साम्राज्य मौजूद था, उन दोनों ताकतों के दरमियान मुसलमान किस तरह अपनी सर्वाइवल की, अपनी आज़ादियों की, अपने वजूद की बका की जदोजहद कर रहे थे। ये कतई कोई ऐसा नहीं था कि किसी को फ़कत एक ख्वाहिश हुई और एक ख्वाब सा उसके दिल में उठा, अलग होने का कोई एक उसको जुनून सवार हुआ। नहीं, इसके पीछे मजबूत वजूहात और दलाइल मौजूद हैं कि हम क्यों अलग हुए। दो कौमी नज़रिए की जो बात की जाती है वो एक ऐसी हकीकत है जो आज भी साबित शुदा है कि हम दो कौमों की बुनियाद पर बर सग़ीर में मौजूद थे और हर कौम के अपने अपने अक़ायद के साथ साथ अपना अपना तर्ज ज़िंदगी और अपनी अपनी उसकी रसूम रवाज थी। वो सफ़र हुआ, हम पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में आ गए। और मैं इस बात पर आज 76 बरस के बाद भी यकीन रखता हूँ कि ये वतन बना ज़रूर, लेकिन दुश्मन जो पाकिस्तान का दुश्मन कह लीजिए या इस्लाम का दुश्मन कह लीजिए या मुसलमानों का दुश्मन कह लीजिए या उस तकसीम के उस नज़रिए का दुश्मन कह लीजिए, वो अव्वल दिन से पाकिस्तान के वजूद को मिटाने के लिए सरगर्म अमल रहा। उसने हर वो तरीका इख्तियार करने की कोशिश की कि जिससे पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर तर किया जा सके, और उसका समर हमने उठाया 1971 के अंदर, जब एक बड़ा हिस्सा हमसे अलग हुआ और पाकिस्तान जिसमें आजकल हम, जिस पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के तौर पर मौजूद रहा। और फिर आज भी हम जब 2023 के अंदर यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि आज भी दुनिया की आलमी ताकतों की निगाहों के अंदर भी पाकिस्तान एक कांटे की तरह खटकता है, और बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें खुद जो आपके इस रीजन के अंदर मौजूद हैं, उनकी निगाहों में पाकिस्तान एक कांटे की तरह खटकता है। पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में उस जगह पर मौजूद है कि जहाँ दुनिया उसकी अहमियत को समझती है कि एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा गेटवे है जो मशरिक़ और मग़रिब को जोड़ने का बुनियाद बनता है। इस खित्ते को फूड बास्केट भी कहा जाता है, ज़राअत के हवाले से भी ये एक ऐसा रिच हिस्सा है। गर्म पानियों
का यहाँ पे सिलसिला मौजूद है। ये तमाम वो फैक्टर फिर जहाँ पर बसने वाले लोग नज़रिए और अक़ीदे के एतबार से एक ऐसे लोग हैं कि जो शायद अपनी जानों को तो कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ना अपने नज़रिए पर, ना अपने अक़ीदे पर, ना अपने कमिटमेंट पर कभी पीछे नहीं हटते। तो वो किसी का शेर है कि कायद आज़म यही पैगाम दिया होगा कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस मुल्क को संभालने की जिम्मेदारी पाकिस्तान, हमारे बुजुर्गों और हमारे ऊपर आयद हुई। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़र्क किया कीजिए, अभी रियाज में एक बात की फ़र्क किया कीजिए, एक है रियासत और एक है हुकूमत। आपका हुकूमतों से इख्तिलाफ हो सकता है, हुकूमतें आपकी पसंदीदा और नापसंदीदा हो सकती हैं, लेकिन रियासत से आपका इख्तिलाफ नहीं हो सकता, रियासत आपकी नापसंदीदा नहीं हो सकती। रियासत पाकिस्तान ये हमारी है, हम सब की है, चाहे मेरे सीने पर किसी भी पार्टी का झंडा लगा हो, चाहे मेरे दिल में किसी की मोहब्बत भी मौजूद हो। हम अपने वोट के ज़रिए से हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें हमारी मर्जी की बनती भी हैं, नहीं भी बनती हैं। हम हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं और कर सकते हैं, आज़ादी इज़हार मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं किसी सियासी पार्टी के नाते के मेंबर या उसका सपोर्टर होने के नाते मैं इस पाकिस्तान के वजूद की खिलाफ साजिश करने वाला चाहे कोई हो, मुझे उसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ा होना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान मेरा है, ये वतन मेरा है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है, मेरे पुरखों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, ये खित्ता इस्लाम के लिए बना है, इस खित्ते ने ये खित्ता कायम रहने के लिए बना। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों का इदराक करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को तारीख़ पाकिस्तान से आशना करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अरसा हो गया स्कूलों में गए हुए, कि अब स्कूलों में किस अंदाज से पाकिस्तान की तारीख़ बताई और पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें याद है कि 80 की दहाई में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें हमारे असातिज़ा पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स पढ़ाया करते थे। उस ज़माने की बातें अभी भी हमारे जहनों के अंदर कहीं ना कहीं महफूज और मौजूद हैं, और वो हमें बावजूद इसके कि हम महंगाई का शिकार हैं, बावजूद इसके कि हम बेरोज़गारी का शिकार हैं, बावजूद इसके कि हम बाज़ वक़्त अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए परेशान होते हैं, बावजूद इसके कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, हमें बहुत से मौक़ों पर लाशें उठानी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत में कमी नहीं होती कि वतन हमारा है। इस वतन को कायम रखने के लिए, इस वतन की हिफाजत के लिए, इस वतन की सलामती के लिए अगर आज भी हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, हम किसी से पीछे नहीं होंगे। दोस्तों, आज 14 अगस्त 2023 का ये दिन, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अभी केक आया हुआ है तो हम सब लोग केक काटने की तैयारी में शामिल होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो फिल्म सिद्दीकी साहब मान दो, सिद्दीकी साहब आ अब बन रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चे आओ, बच्चे सादर साहब बच्चों की बन पड़वा चलो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ठीक हो गया। शहीद आलम साहब
शाबाश ये वो है यस ये जो और पहले मैंने खाना नहीं आएगा